جب آپ مر جائیں تو جنت میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ میں آپ کو اصل مراحل بتاؤں گا، کوئی فضول بات نہیں۔ آخر تک دیکھیں، میں واقعی آپ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ ہم پر اتنی زیادہ معلومات کا بوجھ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس بات پر یقین کریں۔ بس اچھے انسان بننے کی کوشش کریں اور امید رکھیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں آپ کے لیے سب کچھ آسان کر کے بتاتا ہوں، صرف ضروری باتیں۔ آپ کو بائبل کی ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ صرف اس پر منحصر نہیں کہ آپ کیا مانتے ہیں۔ میں آپ کو آخر میں آخری مرحلہ بتاؤں گا، لیکن پہلا قدم ظاہر ہے، یہ ہے کہ آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ خدا واقعی موجود ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کیا؟ آپ یہ پہلے سے جانتے تھے۔ رومیو 1:19 میں لکھا ہے کہ آپ کے دل کی گہرائی میں آپ جانتے ہیں کہ خدا واقعی ہے۔ آپ ہمیشہ سے جانتے تھے۔ کبھی آپ اسے جھٹلانا، نظر انداز کرنا یا حقیقت سے منہ موڑنا چاہتے ہیں تاکہ گناہ کا احساس نہ ہو اور من مانی زندگی گزار سکیں۔ لیکن تم جانتے ہو کہ وہ حقیقت میں موجود ہے۔ اسی لیے تو ملحد بھی اپنی موت کے بستر پہ پکار اٹھتا ہے، خدا مجھے معاف کر دے۔ لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسا تمہارے ساتھ نہ ہونے دو۔ یہ ایک ویڈیو ہی کافی ہے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے۔ ہاں، میں تم سے ہی بات کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو ہی کافی ہے تمہاری زندگی بدلنے کے لیے۔ خدا کون ہے؟ خدا وہ ہستی ہے جس نے اس دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ وہ سب سے بہترین ہستی ہے جس کا تم تصور کر سکتے ہو۔ وہ بہت ذہین ہے، بہت خیال رکھنے والا ہے، ہر لحاظ سے کامل ہے اور اس میں کوئی خامی نہیں۔ اس کا مزہ بھی بہت آگا ہے۔ وہ بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن غلط بات کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ وہ راز باز ہے، وہ پاک اور مقدس ہے۔ وہ بدکاروں اور غلط کام کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ خدا سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ اور ہر چیز ہو سکتا ہے۔ خدا اچھا ہے۔ میں اور بھی بتا سکتا ہوں، بار بار یہی بات، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اسے آپ کی ہر وہ انوکھی بات پسند ہے جو آپ میں ہے۔ اس نے آپ کو ویسا ہی بنایا ہے کسی وجہ سے۔ اس کے پاس آپ کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ ہے۔ اس نے کوئی روبوٹ نہیں بنایا جو اس کا ہر حکم مانے۔ اس نے آپ کو آزاد مرضی کے ساتھ پیدا کیا کہ چاہیں تو اس سے محبت کریں یا نہ کریں۔ اس نے آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ قائم کر سکیں۔ آپ درختوں یا جانوروں سے مختلف ہیں۔ وہ خدا کو اپنا باپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن خدا آپ کو بیٹا یا بیٹی سمجھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس اس کے بچے کی طرح آئیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے مستقبل کو اس میں قبول کریں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، آپ گناہگار ہیں۔ یہ تیسرا نقطہ ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کے دل میں گناہ ہے۔ کیا آپ کو 10 احکام معلوم ہیں؟ کیا آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کیا آپ کے دل میں شہوت ہے؟ کیا آپ دوسروں کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی قانون توڑا اور بچ نکلے؟ آپ کہہ سکتے ہیں، ہاں لیکن میں اتنا برا نہیں ہوں، دوسروں کے مقابلے میں تو میں کافی اچھا ہوں۔ اچھا، تو کیا آپ جنت کے لیے کافی اچھے ہیں؟ اس کا جواب دیں۔ اگر آپ آج مر جائیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ جنت ایک کامل جگہ ہے نا؟ زیادہ تر لوگ اس بات سے متفق ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا جنت میں جھوٹ بولا جاتا ہے؟ اور سب مجھے بتاتے ہیں، نہیں، جنت میں جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ اچھا، تو چھوٹے جھوٹ کا کیا؟ یقیناً بڑے موٹے جھوٹ تو نہیں، تو پھر چھوٹے سفید جھوٹ کا کیا؟ اور وہ کہتے ہیں، نہیں، جنت میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، ذرا سا بھی نہیں۔ اچھا، تو ہوش کا کیا؟ آپ جانتے ہیں جنت میں سب اچھے لگتے ہیں، تو تھوڑی سی ہوش کا کیا؟ چوری کا کیا ہوگا؟ اچھا، موتی کے دروازوں کی بڑی چوری تو نہیں، لیکن تھوڑی سی چوری کا کیا؟ تھوڑا سا؟ نہیں، یہاں نہ کوئی چوری ہے، نہ شہوت، یہاں تک کہ ذرا سا بھی نہیں۔ بالکل ٹھیک، میں متفق ہوں۔ تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم تھوڑا سا جھوٹ بول کر جنت میں جا سکتے ہو؟ تم تھوڑی سی شہوت رکھتے ہو، تمہارے ذہن میں تھوڑے سے برے خیالات آتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں تھوڑی سی برائی بھی ٹھیک ہے؟ دیکھو، یہ اللہ کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا، وہ پاک اور مقدس ہے۔ وہ راست باز اور منصف ہے۔ اگر ہٹلر نے کچھ غلط کیا ہے تو اللہ کو اسے جہنم میں سزا دینی ہی ہوگی۔ ہر برائی کی سزا ملتی ہے۔
तुम जानते हो वो आदमी जिसने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे साथ बुरा किया और वो बच निकला और पुलिस ने कुछ नहीं किया, ये वाकई बुरा है, लेकिन अगर कानून कुछ ना भी करे तो अल्लाह जरूर सजा देगा। और ये तुम्हारे और मेरे लिए बुरी खबर है, क्योंकि हमारी जिंदगियों में, हमारे जहनों में, हमारी रूहों में गुनाह है और ये हमें घसीट कर ले जाएंगे, हमें जहन्नम में ले जाता है। रोमियो 6:23 आयत में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाहगारों को जहन्नम में सजा मिलेगी। यकीनन हम इस बात को कबूल नहीं करना चाहते, हम इस पर यकीन नहीं करना चाहते, लेकिन दिल की गहराइयों में आप जानते हैं कि यह सच है। लेकिन मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं। चौथा नुक्ता, खुदा ने अपने बेटे यसु को भेजा। शायद आपने ये पहले भी सुना होगा, यूहन्ना 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। फैसला आप पर आने वाला था, लेकिन यस्सु खुदा के बेटे ने कहा, मैं वो सजा कबूल करूंगा, मैं कीमत अदा करूंगा, मैं मौत और जहन्नुम का फैसला अपने ऊपर ले लूंगा। अब मैं इस बारे में घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन आइए मैं इसे सिर्फ बुनियादी बातों तक महदूद कर देता हूं। आखिर तक देखें और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप आज ही जन्नत में कैसे जा सकते हैं। ईसा खुदा हैं, ये इसलिए अहम है क्योंकि सिर्फ खुदा ही गुनाह माफ कर सकता है, और ईसा ने कामिल जिंदगी गुजारी बगैर किसी गुनाह के, ताकि वो आपकी जगह ले सकें। जब ईसा सलीब पर गए तो वो आपके गुनाह अपने ऊपर ले रहे थे और आपके गुनाह अपने ऊपर डाल रहे थे। तो उन्होंने आपकी सजा उठाई, आपकी मौत को कबूल किया और वो सलीब पर मर गए ताकि आपको मरना ना पड़े। इसका मतलब यह है कि जन्नत में जाना इस बात पे मुनहसिर नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि कोई भी जन्नत के लिए काफी अच्छा नहीं है, बल्कि निजात, जन्नत सिर्फ खुदा के फजल पर मबनी है। ये सब कुछ उस पर मबनी है जो ईसा ने आपके लिए किया। उन्होंने आपको बचाया, उन्होंने आपके लिए अपनी जान दी ताकि आप जिंदा रह सकें। और फिर आप जानते हैं क्या हुआ? 3 दिन बाद वो मर्दों में से दोबारा जिंदा हो गए, ताकि ये साबित कर सकें कि वो वाकई खुदा है, जैसा कि वो हमेशा कहते थे। और यही वो मकाम है जहां ज्यादातर लोग इंजील में रुक जाते हैं। शायद आप भी यहीं रुक जाते हैं। आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें इंजील के 5 नुकात बयान किए गए थे। आप यहां क्लिक कर सकते हैं ताकि बाद में इसे देख सकें। लेकिन ये सबसे अहम मरहला है, अभी और यहीं आखिरी कदम। सिर्फ इन बातों पर ईमान लाना आपको जन्नत में नहीं ले जाता। ये सिर्फ हकायक हैं, सिर्फ तारीख है। ये वाकई तारीख में हुआ था और आसार कदीमा इसकी तस्दीक करते हैं। लेकिन आप सिर्फ इसलिए जन्नत में नहीं जाते कि आपने तारीख पढ़ी है, ठीक है? क्योंकि शैतान भी इस पर ईमान रखता है। शैतान ये मानता है कि यसु खुदा का बेटा है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए सलीब पर मरा और तीसरे दिन दोबारा जिंदा हुआ। शैतान हकायक और तारीख जानता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो जन्नत में जाएगा। जब बाइबल यसु पर ईमान लाने की बात करती है तो वो सिर्फ हकायक या तारीख की बात नहीं कर रही, ये अपनी जिंदगी उसके सपुर्द करने की बात कर रही है। जब आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो इसका मतलब है, खुदावंद मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, खुदावंद मैं अपनी जिंदगी तेरे लिए गुजारूंगा, खुदावंद मैं गुनहगार हूँ और मैं यकीन रखता हूँ कि तू मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मरा। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे आका बने, मेरे निजात दहंदा बने, मेरे रब बने। मैं आपके लिए जीता हूँ, मैं एक मसीही की तरह जीता हूँ। आप ये सब खुदा से दुआ में बात करके करते हैं। मैं जानता हूं कि आप यह वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यही आप चाहते हैं। आपका दिल पुकार रहा है कि खुदा अभी आपकी जिंदगी में आ जाए। किसी ने आपसे कहा कि ये वीडियो देखें। शायद मैंने पहले कहा था, या आपके दोस्त ने कहा, या खुदा ने किसी तरह आपको इस वीडियो तक पहुंचा दिया। तो क्या आप तैयार हैं? हम ये अभी करने वाले हैं। हम आपके लिए जन्नत में जगह हासिल करने जा रहे हैं जब आप खुदा के बच्चे बन जाएंगे। हम मिल के दुआ करेंगे और यसु को आपकी जिंदगी में आने की दावत देंगे। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आपको बेहतर माहौल में जाने की जरूरत है तो इस वीडियो को रोक लें और जब आप तैयार हो तो दोबारा शुरू करें, लेकिन ज्यादा देर ना लगाएं। मैं अभी पेशगोई करता हूं कि आपको तवज्जो हटाने वाली चीजें और खलल डालने वाले वाकयात पेश आ रहे हैं, तो ये अभी करें और खुदा के बच्चे के तौर पर अपनी जगह महफूज करें। खुदा, ठीक है, चलो ये करते हैं।
आइए आपको जन्नत में ले जाते हैं, गारंटी। पहले मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं और फिर मैं एक दुआ करूंगा जहां आप मेरे बात दोहराएंगे, और फिर ऑफलाइन आप अपने अल्फाज के साथ खुदा से दुआ करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं शुरू करूंगा। आसमानी बाप, हम अभी आपके सामने आते हैं और हम इस हैरान अंगेज मौके के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये शख्स खुदा का बच्चा बनना चाहता है और ये जानना चाहता है जब वो मरेगा वो जन्नत में आपका चेहरा देखेगा और हमेशा आपके साथ रहेगा। तो अभी मैं दुआ करता हूं कि आपकी रूहुल कुदुस इस कमरे में जाए और इस जगह को मुकद्दस बना दे, एक मुकद्दस जगह जहां ये शख्स खुदा का बच्चा बन सकता है। वो अपनी ईमान का इकरार आप में करना चाहती है। वो ये जानना चाहता है कि जब वो मरेगा तो हमेशा के लिए आपके साथ जन्नत में होगा। तो अभी यह है, मैंने आपके मुकद्दस अहकामात को तोड़ा है, लेकिन आपने मेरे तमाम गुनाह इस सलीब पर ले लिए और आप इस सलीब पर मर गए। लेकिन तीसरे दिन आप मर्दों में से दोबारा जिंदा हुए ताकि साबित कर सकें कि आप ही खुदा हैं। खुदावंद, मैं अपना ईमान आप पर रखता हूं। मैं आपके लिए जीता हूं। आपने मेरे तमाम गुनाह माफ कर दिए और मैं आपको अपनी जिंदगी में जाती खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करता हूं। आज के बाद से मैं आपके लिए जीऊंगा। अब मैं सचमुच खुदा का एक प्यारा बच्चा बन गया हूं। यसु, मैं तुमसे प्यार करता हूं और यसु के नाम में मैं ये दुआ करता हूं। आमीन। आमीर वेरेजा, अब आप खुदा के बच्चे हैं। वाकई आप हैं, लेकिन आप जानते ही क्या, मैं चाहता हूं कि आप अभी अपने अल्फाज में खुदा से दुआ करें, मेरे अल्फाज में नहीं बल्कि अपने अल्फाज में। तो अभी इस वीडियो को रोकें और चंद मिनट निकालें कि खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा से बात करें, या वो दुआ जो हमने अभी की है उसे अपने अल्फाज में कहें। ठीक है, और जब आप वो दुआ कर लें तो वीडियो को दोबारा चलाएं। अगर आपने वो दुआ खलूस दिल से की है तो मुझे ये एजाज हासिल है कि सबसे पहले मैं आपको जन्नत में खुश आमदीद कहूं। जब आप एक दिन इस दुनिया से जाएंगे तो आप जन्नत में होंगे, ये यकीनी है, क्योंकि आपकी निजात इस बात पर मुनहसर नहीं कि आप कितने अच्छे हैं, बल्कि इस पर है कि यसु ने आपके लिए जान दी, आपसे मोहब्बत की और आपके गुनाह माफ किए। अगर आपने अभी खुदा से दुआ की है तो मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट करें ताकि मैं और दूसरे लोग आपकी हौसला अफजाई कर सकें, आपके लिए दुआ करें और आपकी रूहानी तरक्की में मदद करें। अभी कमेंट करें। अब यहाँ कुछ अगले इक़दामात हैं। आपको बाइबल पढ़ना शुरू करनी होगी, तो इस बाइबल ऐप को डाउनलोड करें जिसका नाम यू वर्जन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। और मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छी चर्च तलाश करें। अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको कुछ अच्छी चर्चेस के बारे में तजावीज़ दूंगा, लेकिन आपको दूसरे मसीहों के साथ मिलकर बढ़ना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी रूहानी नशोनुमा में मदद कर सकूं। और अगली बार तक खुदा आपको बरकत दे और खुदा के खानदान में खुश आमदीद।